Good morning again to all of you. What a wonderful morning and what a fantastic crowd here. Let's begin with the next lecture there, that is GAPS, Generally Accepted Accounting Principles. That is the agenda of today's lecture, students. But before beginning the lecture, as per our tradition, as usual, let's pray to Ma Saraswati for the well-being and for the goddess of knowledge, for all the knowledge which is spread into the entire world there. Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhirupena Samsthita Namastasye 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 Namo Namah. So by praying to Goddess Saraswati, let's start with this fantastic lecture of GAPS, that is Generally Accepted Accounting Principles. Students, we all know that every subject is having its own foundation. Let it be mathematics, let it be English, it is having its own foundation. What I want to say is, in English we are having ABCD. You all know that we cannot learn English without all these alphabets. Now, why A look like this, B looks like this, we don't have any answer. Similarly, in mathematics, we are having numbers on which entire subject is going on. And again, we don't have answer that why 0 is looking like this, why 3 is looking like this, why 4 and 5 and rest is looking like this. Now, what are these numbers and what are these alphabets? Absolutely, these are nothing but the fundamental assumptions of the subject of mathematics and English, on which the subject is standing, on which entire subject is driven. Similarly, accounting is having its own fundamentals, its own principles, its own concepts, conventions, assumptions and ground realities, and those are called as, in accounting language, as generally accepted accounting principles. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? Generally accepted accounting principles known as GAPS. Popularly इनको GAPS बुलाया जाता है. और GAPS का full form क्या है? That is Generally Accepted Accounting Principles. So let's see all of them one by one. It is very important lecture because this is going to lay down the foundation for all next lectures of accounting there. So these are Generally Accepted Accounting Principles. Do remember, students, all these are called as fundamental assumptions. These are called as ground rules, realities on which the subject is standing erect. Otherwise, the subject cannot stand. इसके बिना subject खड़ा ही नहीं रह सकता. So let's see what is the meaning and importance of accounting concepts there. Obviously, what is the basic purpose of accounts there? That is to prepare profit and loss account and balance sheet. Accounts का basic purpose क्या है बेटा? कि हम जो interested parties है उनको basic समझाए, और basic accounting is the language of the business. It is defined as, accounting को क्या बोला जाता है? Language of business. और ये language of business क्या communicate करना चाहती है to all interested parties in the business? It just want to communicate two financial statements which are very important. Number one is profit and loss account. The end result for this is to find out profit and loss, and second is a balance sheet, which is nothing but a statement of various assets and liabilities as on a date. तो ये दो चीजें हमें प्रिपेयर करनी है बेटा. एक हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट. दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. दिस इज पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच वी आर लर्निंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज दैट व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एट द एंड ऑफ द डे, जिसको पॉपुलरली फाइनेंस में बॉटम लाइन भी बोला जाता है. बॉटम लाइन मतलब जो सबसे आखिरी में आता है और जिसके लिए बिजनेस किया जाता है. वी डू बिजनेस फॉर अर्निंग नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, एंड देन ऑब्वियसली दिस प्रॉफिट कैन बी एंजॉयड बाय द शेयर होल्डर्स और ओनर्स और स्टेक होल्डर्स. दैट इज हाउ नेट प्रॉफिट. बैलेंस शीट सिंपली, स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन अ डेट. बैलेंस शीट क्या है बेटा? तो दिस इज नथिंग बट सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. तो ये दो बनाने के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं. अकाउंटिंग ये बनाता क्यों है? सो दैट these financial statements will convey the results of business to all interested parties. जो भी interested people है business में. अब interested कौन है? There are two set of parties in a business who are interested in any business, that is internal parties and external parties, जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस में और जो जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है. That is always their purpose and that is what we want to see as far as this particular context is concerned. So let's see that who are the internal parties. Internal parties, those who are the insiders of the business, that is owners, the first party who's interested to knowing that what is there in the business, profit, loss, what are the assets and liabilities. So सबसे पहले owners है जिनको हम shareholders भी बुलाते हैं.
Second is employees who are working for you and who are saying that you are earning profit because of us. So increase our salaries, give our bonus, give our incentives and that way around. And these are the two internal parties. एक है owner या shareholder और दूसरा है employee. Rest all are external. External parties में सबसे interesting और पहले पार्टी होती है competitor, जिनमें बहुत interest होता है कि आपके business में क्या हो रहा है, उनके यहाँ पे क्या हो रहा है, that is apart, but they are always interested in your business being your competitor. The next interested party apart from competitor is nothing but that is your income tax department, government, who always prays for your well-being, says that earn good profit and pay good amount of taxes. So उसको income tax या government ये second party होता. Competitors is the another party which is external. Along with that, the other parties who are interested and external to the business is customer, common public. Customer भी interested होते हैं आपके business में, common public भी interested होती है आपके business में, and along with that, trade unions are also interested in your business. So these are the certain parties. Creditors you can say, क्रेडिटर्स जो होते हैं जिन्होंने आपको पैसा उधारी पे दिया है, जिन्होंने रॉ मटेरियल आपको उधारी पे दिया है, या जिनको आपको आपने कुछ देना है लेकिन अभी तक नहीं दिया, जैसे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. So here are the interested parties given, even investors, banks and financial institutions, government and other agencies. So these are given different parties there. तो ये P&L और बैलेंस शीट हमें बनाना है और इनको कम्युनिकेट करना है कि हमारा क्या चल रहा है. The bottom line कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, and what is the position of business in terms of various assets and liabilities. So do remember students, the basic purpose of financial accounting is preparation of financial statements. और ये financial statements से क्या होता है, financial statements से आप financial position business की convey करते हैं to all interested parties, मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉइज एंड ओनर्स और शेयर होल्डर्स. एक्सटर्नल में बैंक्स है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट या इनकम टैक्स है, कंपटीटर है, कस्टमर है, कॉमन पब्लिक है, इन्वेस्टर है. ऑल दीज आर द एक्सटर्नल पार्टीज एंड हु आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर बिजनेस. सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंड यू शुड कम्युनिकेट देम द रिजल्ट थ्रू profit and loss account and the balance sheet. That is what the purpose there. Now these gaps, that is generally accepted accounting principles, are the fundamental assumptions of accounting on which subject is standing, और इसी पे subject चलता है. ये gap क्यों आते हैं? What is the purpose of these gap? उसके पहले उन्होंने accounting is not only associated with the business but also with everybody who's interested in keeping an account in monetary transaction. Generally the term accounting refers, accounting का definition इन्होंने दिया बेटा, refers to financial accounting which I just told you. Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying, summarizing and interpreting the result of the business in a systematic manner. That is what bookkeeping and accounting का definition उन्होंने दिया है. अब ये importance of accounting concept, accounting concept क्यों बनाना है? जैसे मैं बोल रहा हूँ land and building, plant and machinery is an asset for my business. Same is with you. ये बदलता है क्या? So accounting concepts, assumptions, gaps, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, ग्राउंड रियलिटीज, ये बोलते हैं कि जो सारी चीजों का डेफिनेशन है या जिस तरह से उनको डिफाइन किया गया है, ये सबके लिए एक है. असेट सबके लिए एक जैसे, लायबिलिटी सबके लिए एक जैसा. सो दैट वे अराउंड इट जस्ट वांट टू bring uniformity into the financial statements there. So whatever you are preparing and communicating, it will be uniform to all the users and to all the owners as well. So what is the importance of accounting concept? Comparability अगर किसी चीज की होनी है तो obviously terms same होनी चाहिए, interpretation meaning same होना चाहिए. That is what the purpose there for accounting concept. इंडिया में ये gaps कौन बनाता है? इंडिया में accounting concept कौन बनाता है? कौन बनाता होगा students? Yes, that is the right answer. The gaps are going to be prepared in India by ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. India में ये gaps बनाता है Institute of Chartered Accountants of India, जिनको हम ICAI बुलाते हैं. ICAI is the body responsible in India for framing all these gaps, for framing all these principles, concepts and conventions. So importance of accounting concepts, number one, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग कंसेप्ट क्यों ध्यान में रखने हैं, क्यों इंप्लीमेंट करनी है? क्योंकि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको हम बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट, इसको फाइनल अकाउंट्स बुलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुलाते हैं. एंड फाइनल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट, स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुलाते हैं बेटा, याद रखिए. दीज आर कॉल्ड एज एफएस, और सिंपल लैंग्वेज में इनको आप फाइनल अकाउंट्स भी बुलाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स. एंड दीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड वन मोर जो आप आगे जाके देखेंगे, दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट.
कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. सो दीज आर नथिंग बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस. सो फर्स्ट पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, लेकिन कैसे बनाने हैं? रिलायबल बनाने हैं. सेकंड, यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन. इनके प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, assets आर सबके लिए उसी तरह से होंगे. liabilities that way around debtor, creditor, bad debts and what not. थर्ड, जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट. जब हम इनको मेजर करेंगे तो बेसिस ऑफ मेजरमेंट विल बी वन एंड द सेम, यूनिफॉर्म, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल, मे बी इंटरनल, एक्सटर्नल, नो मैटर. एंड लास्ट, वैलिड एंड अप्रोप्रिएट assumption. ये assumption वैलिड भी है, अप्रोप्रिएट है. नाउ योर क्वेश्चन मे बी whether these gaps are flexible. To some extent, yes, it is flexible, but do remember, gaps are not at all completely changing there. To some extent, absolutely these are changing. So let's see the gaps, students. Do remember, gaps are generally accepted accounting principles, fundamental assumptions of the subject, and these are framed by ICAI, without which accounting cannot go ahead. तो सबसे पहला कंसेप्ट देखते बेटा. हमने वैसे ये लेक्चर नंबर 2 में भी देखा था. कंसेप्ट याद होगा आपको, कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट द कंसेप्ट सेज, मैं यहां पे दिया वो नहीं पढ़ूंगा. हमने जो उसको सिंप्लीफाई किया है सालों साल से, मैं ये आपके लिए बताऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. बाकी तो आप ये पढ़ ही सकते हैं और इससे आपको कुछ और एडिशन हो ही जाएगा. डू रिमेंबर, in the eyes of law, what is the concept says? In the eyes of law, business and owner are to separate legal entities. Law के हिसाब से owner और business ये दो अलग अलग entities है. So whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from the business, that is owner is liable to pay it back to the business. तो पहला कंसेप्ट क्या बोलता है कि in the eyes of law, owner and business are two separate legal entities. No matter, we still know that business is an artificial entity and created by owner only, but still law says that owner is separate and business is separate. So whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from business, owner is liable to pay it back to the business, or else it need to be reduced from the business capital, which is called as drawing. Concept further says that why the concept has come into existence: to maintain two separate set of books of accounts, one for owner, another for business. ये concept picture में आया ही क्यों बेटा? ये concept picture में इसलिए आया ताकि दो separate books of account होनी चाहिए, एक owner का होना चाहिए और दूसरा business का. That is how this concept comes into picture. That owner personal transaction should be recorded in owner's books of account, business transaction should be recorded in business books of account. तो total concept क्या हुआ? That in the eyes of law, owner and business are to separate legal entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from business, owner is also liable to pay it back to the business, or else it will be treated as drawing, and drawing should be reduced from capital. Now, another paragraph says that why this concept comes into existence. Concept इसलिए picture में आया, इसका जन्म इसलिए हुआ ताकि we should have two separate set of books of accounts, one for personal transactions of owner, another for business transaction of business, so that the business transactions should not be mixed with owner's personal transaction, and there should not be confusion. By this way, if owner is investing rupees 10 crore as the initial investment, the same is treated as capital. अगर आप 10 करोड़ रुपए देके बिजनेस चालू कर रहे, let's say that I am starting a business by investing rupees 10 करोड़, तो मैं अपने पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में ये इन्वेस्टमेंट बताऊंगा और बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल बोल के बताऊंगा लायबिलिटी साइड में. लेकिन लायबिलिटी के साथ साथ मुझे असेट साइड में ये कैश इन हैंड भी बताना पड़ेगा बिजनेस में. So do remember, along with this concept, another concept comes into picture which says that every business transaction will have at least two impacts. इसके साथ और एक कंसेप्ट जन्म लेता है बेटा, जिसको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? इट सेज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल हैव अ ड्यूअल इंपैक्ट. मतलब एक असेट और दूसरा लायबिलिटी. मैं आपको समझाता हूं, बड़ा आसान है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके लिए यहां पे लायबिलिटी और असेट का चार्ट बना देता हूं, आप समझ पाए इसलिए. सो हियर इट इज लायबिलिटी and the another one is assets here. Liability और assets ऐसा चार्ट मैंने बना दिया. बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान दीजिए. Let's say that I have contributed cash rupees 10 करोड़ to start the business. मैंने कंट्रीब्यूट किया 10 करोड़ बिजनेस शुरू करने के लिए. तो 10 करोड़ यहां पे कैपिटल बताया और 10 करोड़ मैंने यहां पे कैश बताया. सो इट इज हैविंग अ ड्यूअल इंपैक्ट. चलिए यहां पे कैपिटल बता देता हूं.
सो लायबिलिटी बनी 10 करोड़ की, असेट भी बना 10 करोड़ का. टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. दैट इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल हैव अ ड्यूअल इंपैक्ट. कम से कम 2 इंपैक्ट रहेंगे उसके, कम से कम मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं. And dual aspect concept only says that is how there should be always an accounting equation which says that total assets is equal to total liabilities, or total assets is equal to capital plus outsiders liabilities, or total assets is equal to net worth plus outsiders liabilities. तो ये तीनों accounting equation आते हैं बेटा dual aspect concept से. देखिए, I have started business विथ रुपीज 10 करोड़ एज कैश, तो मैंने 10 करोड़ असेट में बता दिए बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में, और वही 10 करोड़ कैपिटल में बता दीजिए. दैट इज हाउ अ ड्यूअल एस्पेक्ट इज देयर. लेट्स से दैट ये 10 करोड़ मेरे लिए काफी नहीं है, तो मैंने बैंक लोन लिया एंड आई हैव टेकन फ्रॉम HDFC बैंक लोन 14% HDFC बैंक लोन. मैंने बैंक लोन लिया HDFC से और वो लिया मैंने 20 करोड़ का. अब बैंक लोन लिया मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया स्टूडेंट्स, यस और नो? अब ये तो लायबिलिटी बता दिया मैंने. 14% क्या बेटा? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आई एम सपोज टू पे टू देम ऑन द लोन अमाउंट देयर. सो आई नीड टू शो हियर बैंक बैलेंस, क्योंकि लोन जब आता है तो कैश में नहीं आता, बैंक बैलेंस में आता है, तो इधर भी 20 करोड़ बेटा. तो देखिए यहां पे 30 करोड़ liabilities and 30 crore assets. Again the accounting equation is very true. That is total assets is equal to total liabilities, or total assets is equal to net worth plus outsiders liabilities, जो मैंने आपको बताया था. ये दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन बनते हैं ये दोनों कंसेप्ट से. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी और लीगल एंटिटी कंसेप्ट. और दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 impacts, and those impacts are in such a manner that total assets is equal to total liabilities. आप कोई भी ट्रांजैक्शन लीजिए इस तरह से इफेक्ट करेगा. एक इफेक्ट असेट में आएगा, दूसरा लायबिलिटी में आएगा, और फाइनली टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी आएगा. दैट वे अराउंड. सो बिजनेस एंटिटी इज वेरी क्लियर विच यू कैन सी हियर. लेट मी शो यू ड्यूअल एस्पेक्ट. सो टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी बताने के लिए मैं टोटल कर देता हूं बेटा. यहां पे अकाउंटिंग में टोटल करने का फंडा है इस तरह से. एक लाइन ऊपर मारते हैं, 2 लाइन नीचे मारते हैं, और अकाउंट क्लोजर बोलते हैं. सिमिलर लाइन पे क्लोजर करना है, ऐसा नहीं कि इधर ऊपर उधर नीचे जा रहा है. देखिए मेरा सेम लाइन पे हो गया लगभग. दैट यू कैन सी हियर. सो लेट मी शो यू व्हाट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हियर. ड्यूअल एस्पेक्ट इज गिवन हियर, बट फर्दर थोड़ा आगे जाने के बाद दिया दे दीजिए. देख लीजिए बेटा. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 aspects. That is dual effect. For example, when Akshay start a business, let's say that Deepak starts the business with cash rupees 5 lakh. So on one hand, the business get cash of rupees 5 lakh, and on the other hand, the liability arises in the form of capital. That is, business has to pay back to Akshay rupees 5 lakh. ये capital business को वापस देना पड़ेगा ओनर को जब बिजनेस बंद हो रहा होगा. By that way, it will be shown as a liability. तो याद रखिए बेटा, capital is always a liability. एंड जो कैपिटल पे प्रॉफिट हम बनाएंगे वो भी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस उसको खुद नहीं रख सकता. बिजनेस इसको किसको पे करना है? ओनर को पे करना है वापस. ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप वहां पे देख सकते हो बेटा. दिस इज द कंसेप्ट विच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. तो इसी ड्यूअल एस्पेक्ट से डेबिट क्रेडिट का भी जन्म हुआ है. डेबिट क्रेडिट क्या हुआ है, क्या होता है? डेबिट क्रेडिट आर नथिंग बट द नेमिंग कन्वीनियंसेस. जैसे हमारे नाम है बेटा वैसे डेबिट और क्रेडिट है. वैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट का मतलब है सिर्फ प्लस और माइनस. बट डू रिमेंबर डेबिट इज ऑलवेज नॉट प्लस एंड क्रेडिट इज नॉट ऑलवेज माइनस. इट चेंजेस एज फार एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर कंसर्न. वो हम आने वाले टाइम में देखने ही वाले. तो दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो ड्यूअल एस्पेक्ट से और एक चीज जन्म लेती है, उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं. फ्रॉम दिस कंसेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन राइजेस, दैट इज कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, और टोटल असेट्स जो मैंने ऊपर लिखा था. तो देखिए बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट और बिजनेस एंटिटी मैंने आपको समझाया. बिजनेस एंटिटी सेज दैट इन द आइज ऑफ लॉ ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. So whatever owner gives to the business is liable to pay it back to the owner, and whatever owner withdraws from the business, owner is liable to pay it back to the business, or else it should be treated as drawing, and drawing always reduces capital. And at the same time we have seen dual aspect concept which says that if you start a business by investing rupees 10 crore, this 10 crore will be shown as cash in the books of accounts in the form of assets. Similarly, this 10 crore will be shown under liability because it is capital and it represents a capital by business entity concept. आपने अगर लोन लिया तो लोन भी liability में भी आएगा और assets में आएगा. asset में बैंक बैलेंस बोल के आएगा और liability में लायबिलिटी बोल के आएगा. 14% HDFC बैंक लोन
And finally we get accounting equation here, that is total assets is equal to total liabilities. Total liabilities मतलब इंटरनल भी आ गए और एक्सटर्नल भी आ गए. इंटरनल मतलब नेटवर्थ जो आपका कैपिटल है उस पे रिजर्व्स आपने अकोमोडेट किया, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. सो टोटल असेट्स इज इक्वल टू नेटवर्थ प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. आई होप you are getting this concept called as business entity, separate entity or legal entity concept. Along with that, the second concept we have seen is dual aspect. Very important, both of them, and I hope you understood them along with this chart. ये चार्ट बनाइए आप, एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ले सकते हैं बेटा, आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे. नेक्स्ट टू कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज मनी मेजरमेंट एंड नेक्स्ट दैट इज अ कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोला जाता है बेटा. पहले मनी मेजरमेंट आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा. मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट इज वेरी सिंपल. इट सेज दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. कंसेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली monetary transactions, that is the transactions which are expressed in the form of money. It simply means that accounting never records non-monetary transactions, though they are very important for the business. Though they are very important for the business, like trust and faith between the employer and the employees, the relation of boss and the employees, ये भले बड़ा important है लेकिन record नहीं किया जा सकता. And this is how it is called as मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. अकाउंटिंग सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है. कंसेप्ट आगे बोलता है अकाउंटिंग डजंट रिकॉर्ड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. एंड डू रिमेंबर दीज डेज बिजनेस इज अ ग्लोबल थिंग. आजकल बिजनेस सिर्फ इंडिया का बिजनेसमैन सिर्फ इंडिया में नहीं करता, वो यूके में, यूएस में और डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस उनका फैला हुआ है. इन सच अ केस, इन विच पर्टिकुलर करेंसी यू शुड एक्सप्रेस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. स्टूडेंट्स बताइए, बिजनेस अगर आपका इंडिया का है लेकिन आपका बिजनेस यूएस में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग कंट्रीज में आपका बिजनेस फैला हुआ है, एक्सपांडेड है, तो आप कौन से करेंसी में उसको एक्सप्रेस करेंगे? विल यू एक्सप्रेस इट इन डॉलर, यू विल एक्सप्रेस इन रुपी और पाउंड और एन, किस में एक्सप्रेस करेंगे? इसका आंसर है बेटा यस प्लीज. नो, दैट इज नॉट राइट. द आंसर इज इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन होम करेंसी. इसका आंसर है बेटा होम करेंसी. होम करेंसी मतलब जहां का बिजनेस है वहां की करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे. सिंपल कंसेप्ट है. कंसेप्ट 4 लाइन में क्या बोलता है? कंसेप्ट बोलता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. It never records non-monetary transactions, though they are very important for the business. हो गई 2 लाइन. तीसरी लाइन बोलती है these days business is not at all restricted to the local boundaries. When business is done globally, in that case the financial statements, that is profit and loss account and balance sheet, must be expressed in the home currency or the currency from where the business has been originated for the first time. मतलब अगर इंडियन बिजनेस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस हम ऑलवेज करेंगे रुपी में. भले ये ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस करे, यूएस में करे, यूके में करे, सऊदी अरेबिया में करे, कहीं पे भी करे, बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. दैट इज व्हाट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? फिर से रिपीट करता हूं. अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. इट नेवर रिकॉर्ड्स नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस which cannot be expressed in the form of money, though they are very important for the business. The second paragraph says that these days business is done on global basis. So when business is expanded globally, the financial statements must be prepared in their home currency from where the business might have originated. So if a business is originated in US and even done in India, they need to prepare the financial statements in dollar. But the business is originated from India and it is there into different countries of the world, there still always the financial statements, that is P&L and balance sheet, will be expressed in terms of rupees. So done. This is the third concept, my dear, that is money measurement concept. Same is given here, and obviously you can read this concept which is given in the textbook. I am not reading it because ये थोड़ा सा अलग दिया है, बहुत जगह पे मैचिंग है, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत जगह पे मैच नहीं कर रहा है, बट आप पढ़ेंगे तो और आप समृद्ध हो जाएंगे और आप वैल्यू एडिशन आपका हो जाएगा. दैट वे अराउंड योर नॉलेज हॉरिजॉन विल इंक्रीज. तो आपने ये पढ़ना चाहिए जो नोट्स दिए है, बट उसके साथ मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज very much to the point and precise, which is banging on the target, which you will enjoy and which you can write down in the examination as well. इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, because what it wants to analyze and interpret is one and the same thing. अगला concept देखते बेटा, which is called as historical cost concept. इसको कॉस्ट कंसेप्ट बुलाते हैं या historical cost concept बुलाते हैं. What it says, cost concept says that in accounting
the assets should be valued at, the fixed assets should be valued at its cost price, at its purchase price or acquisition price, and the subsequent accounting will be done on the basis of the cost price or historical cost price or the acquisition price or purchase price of that particular asset, say land and building, plant and machinery, furniture and fixture and so on. मैं क्या बोलना चाहता हूं? Let me tell you in simple words. Let's say that you have acquired a land at Deccan. आपने डेक्कन में एक लैंड एक्वायर की थी 1990 में, एंड दैट लैंड इज एक्वायर्ड एट 5 लाख पर एकड़. आपने 5 लाख पर एकड़ लैंड एक्वायर की और 5 एकड़ लैंड आपने एक्वायर की 25 लाख रुपए में. तो पर एकड़ रेट कितना था बेटा? सिर्फ 5 लाख. 1990 में आपने एक्वायर की 5 लाख पर एकड़ और 25 लाख की लैंड एक्वायर की आपने डेक्कन में. अब उसका आज का वैल्यूएशन कितना होगा? आप बोल सकते हैं आराम से, इट विल बी अराउंड मे बी से 100 करोड़, 150 करोड़, बट it will be still shown in books of account as only 25 lakhs. Why? Because it is purchased at 25 lakhs. हाँ, अब इसका subsequent जो accounting है, अब ये land का depreciation होगा क्या? तो open land is not subject to depreciation. Depreciation is what? Reduction in the value of fixed assets due to use of the assets, due to wear and tear and due to technological outdatedness. लेकिन land पे तो depreciation नहीं हो सकता. हाँ, वहां पे आपने बिल्डिंग अगर बनाई तो बिल्डिंग depreciate हो सकती है over the period of time. Land पे depreciation नहीं होता. तो land का जो accounting है बेटा 25 लाख से ही बताएंगे. आप बोलेंगे सर फिर ये 200 करोड़ का valuation कब बताएंगे? आप actually अगर sell करने जाए तो उसका कितना valuation आता है वो आप बता सकते हैं, लेकिन sell करने के बाद, because that is the market value. Cost concept says that the assets which are acquired in the business, fixed assets, long-term assets which are acquired in the business should be shown at cost, and its subsequent accounting will also be done on historical cost. It doesn't mean that the same value will be shown always. It simply means that the basis of accounting will be historical cost or the cost of that particular asset for which it has been acquired or purchased. Don't be confused. दो लाइन में कंसेप्ट क्या बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट? दैट व्हाटएवर assets a business acquires, it should be always shown at its cost price, purchase price or acquisition price. Further, it says that it doesn't mean that always the cost price is going to be shown in the books of account. Rather, it says that the accounting for subsequent years will be done on the basis of this historical cost. For example, अगर asset आपका, जैसे for example आपने कार खरीदी 50 लाख की, अब 50 लाख की कार खरीदी और उसमें 10 लाख का इकोनॉमिक लाइफ है, मतलब 50 लाख पे आपको हर साल डिप्रीशिएशन बताना पड़ेगा. अभी 2015 में आपने कार खरीदी तो 2022 में भी 50 लाख का वैल्यूएशन तो नहीं रहेगा. क्यों? बिकॉज 7 साल तो आपने यूज कर ली, डिप्रीशिएट हो गई कार. Because there should be a systematic reduction in the value of the fixed asset due to use of the asset and wear and tear. तो 2015 की खरीदी है, 2025 का उसका एक्सपायरी है. क्यों? 10 साल ही इकोनॉमिक लाइफ है. तो 7 साल, अगर 10 साल असेट का वैल्यू आपको हर साल रिड्यूस करना है तो 50 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए. हर साल 5 लाख रिड्यूस करना पड़ेगा. तो 7 साल बाद ये असेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 7 5 35 तो चले गए, 15 लाख की इसकी वैल्यूएशन रहेगी. अब ये 50 माइनस 35 इज 15. मतलब हमने बेसिस क्या लिया बेटा? कॉस्ट लिया. तो पहले साल 50 लाख की वैल्यू, 5 लाख का उसका डिप्रीशिएशन पहले साल मारा. 50 माइनस 5 कितना बचा बेटा? 45. फिर 5 लाख का 45 माइनस 5 40. फिर 5 लाख का 40 माइनस 5 35. फिर 5 लाख का 35 माइनस 5 30. That way around, every year 5 lakh will be reduced systematically. On what price it is reduced, my dear? On cost price. So again, I am coming on the concept that whatever you acquire as an asset in accounting, it will be always shown at its historical cost, its purchase price or cost price, and the subsequent accounting will be done on this cost price only. The market price for that asset will never be considered unless and until the asset is sold and value is realized. That is what the cost concept, यही उन्होंने दिया है बेटा, आप पढ़ सकते हैं बाद में. So we have seen as of now 4 concept. Concept number 1, business entity, separate entity or legal entity concept. Concept number 2, money measurement concept. Number 3, it is कॉस्ट कंसेप्ट. और बिजनेस एंटिटी के साथ ही हमने एक कंसेप्ट खत्म किया था, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, व्हिच हैज गिवन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, और टोटल असेट्स इज इक्वल टू नेटवर्थ प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन जिसने हमें दिया था. सो लेट्स सी द अदर कंसेप्ट्स देयर. दैट इज गोइंग कंसर्न. अगला कंसेप्ट बेटा गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज दैट द बिजनेस इज सपोज्ड टू बी देयर फॉर अ फेयरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बिजनेस की जिंदगी कितनी है?
हमारी जिंदगी कितनी है? ऑप्टिमिस्टिकली बोलिए, 100 साल जिएंगे, बड़े हेल्दी जिएंगे, सूर्य नमस्कार कीजिए, बाबा जी को फॉलो कीजिए, रामदेव बाबा जी को, योगा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने के लिए पैसा नहीं लगता. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इसेंशियल फॉर अ गुड हेल्थ. हर चीज पैसे से नहीं होता बेटा, बहुत सारी चीजें एटीट्यूड से होती है और पैसा भी एटीट्यूड से आता है. सो कल्टिवेट गुड हैबिट्स अमंग योरसेल्फ, दैट इज हाईली रिक्वायर्ड. एंड डू रिमेंबर doing Surya Namaskara and at the same time waking up early in the morning, doing Yogasana and all those things are having tremendous benefits for your life there. तो याद रखिए और इनको जरूर कीजिए. Going concern क्या बोलता है कि बिजनेस की लाइफ कितनी है? Business should live for n number of years, infinite years into the future there. Why? Because it is a non-living entity, it is an artificial entity. It will run unless and until you sell it, unless and until you close it. So business की लाइफ कितनी है? Business is supposed to be there for a fairly longer period of time unless and until it is liquidated. Liquidated का मतलब क्या बेटा? Liquidated का मतलब सीधा साधा है कि आपने बिजनेस के असेट बेच दिए, लायबिलिटी पे कर दिया और बिजनेस बंद हो गया. So ये टर्म याद रखिए, called as liquidation. Liquidation का मतलब क्या है? Selling the business assets and paying all the liabilities and closing the business. Liquidation. तो बिजनेस तब तक चलेगा जब तक लिक्विडेट नहीं करेंगे. एंड इट सिंपली मीन्स दैट इसी बेसिस पे सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं. कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम. जैसे हम बोलते हैं बैंक से इंटरेस्ट आना है लेकिन आया नहीं. बैंक आपको भी बोल सकती है इंटरेस्ट आपने पे करना है लेकिन किया नहीं, आपने ईएमआई दिया नहीं, दैट इज इंटरेस्ट ड्यू इज बट नॉट पेड. आपने एफडी किया तो आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट ड्यू है बट मिला नहीं है. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं गोइंग कंसर्न पे. रिपीट करता हूं, गोइंग कंसर्न क्या है? बिजनेस इज सपोज टू बी देयर फॉर अ फेयरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनटू द फ्यूचर अनलेस एंड अंटिल इट इज लिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड मींस द असेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर पेड एंड द बिजनेस इज क्लोज्ड डाउन. बिजनेस बंद करना मतलब शटर बंद करना नहीं होता बेटा. बिजनेस बंद करना मतलब असेट बेचना और उसके बाद लायबिलिटीज पे करना. वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स. इसी बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसी डिप्रिसिएशन पे, इसी काइंड ऑफ चीजों पे हम वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम. अक्रूड का मतलब क्या है? आम कब खा सकते हैं? जब पकेगी तब खा सकते हैं. अगर आम आ गए मार्च में लेकिन अभी पके नहीं है तो आप उसको रखते हैं अच्छे से ताकि वो पक जाए और पकने के बाद आम खाते तब मजा आता है. उसी तरह से अक्रूड का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड. अक्रूड का मतलब क्या है? मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है. फॉर एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं. लेट्स सी दैट आई वर्कड फॉर एंटायर मंथ ऑफ अगस्त. मैं पूरे अगस्त के महीने के लिए काम किया तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए कब? 1 सितंबर को मिलनी चाहिए. am I right? So I can say that on 1st of September, after very much honestly working for entire August, that salary for August is due but not received. और ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगा? दैट इज सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड. तो सैलरी कब ड्यू होगी? सैलरी ड्यू होगी पूरा महीना खत्म होने के बाद. सैलरी अक्रू कब होगी? अक्रू मतलब लॉजिकली इट इज ड्यू, लॉजिकली ड्यू होगी 1 सितंबर को. पूरे अगस्त में तो बोल नहीं सकता कि सैलरी ड्यू है. क्यों? अभी तक काम कर रहा हूं, महीना खत्म होना बाकी है. अभी महीना खत्म होगा तो मैं बोल सकता हूं ऑन September 1st सैलरी इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. सैलरी इज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू और नॉट रिसीव्ड, अक्रूड और नॉट रिसीव्ड इज वन एंड द सेम थिंग. ये देखिए बेटा, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड आपको बताता हूं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटिंग एंड एट टाइम्स यू मे बी अननेसेसरली कंफ्यूज्ड. सो ड्यू और अक्रूड इज वन एंड द सेम. इसी को हम बुलाते हैं आउटस्टैंडिंग. ये सारे टर्म्स सेम है बेटा, सब भाई भाई है. और ये है अनपेड, सिनोनिमस टू ईच अदर. ड्यू, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ऑल आर वन एंड द सेम. इनका मेन मीनिंग सेम है बेटा. सो दिस इज द 5th concept called as going concern. And see it. Next important concept which is very important is accrual concept, my dear. Accrual concept क्या बोलता है? Say on 23rd of August, if I'm making the purchase of goods on credit basis of rupees 5 crore, मैंने अगर रॉ मटेरियल खरीदी किया आज के डेट में 5 करोड़ का और ऑब्वियसली इट इज सपोज टू बी पेड आफ्टर 2 months. ट्रांजैक्शन है 23 अगस्त का, पेमेंट जाना है 23 अक्टूबर को. तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करना चाहिए बेटा? 23 अगस्त को या 23 अक्टूबर को? व्हाट शुड बी द आंसर? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर? 23rd August, 23rd October? Which is the answer? But why? Logic.
So answer is 23rd of August. Why? Accrual concept says that record the transaction whenever it is happening, irrespective of the fact that it is paid in cash or not or received in cash or not. मतलब ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करना है जिस दिन वो एक्चुअली हुआ है. ये मतलब नहीं है कि उस दिन कैश पे हुआ या नहीं हुआ, कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ. मतलब मैंने अगर 23 अगस्त को गुड्स बेचे है तो मैंने सेल 23 अगस्त का ही बताना चाहिए, भले मुझे पैसा 4 महीने बाद मिलने वाला है. उसी तरह से अगर 23 अगस्त का मैंने खरीदी किया है क्रेडिट पे तो परचेस भी 23 अगस्त का ही बताना चाहिए, भले पैसे मैं 2 महीने बाद दूंगा. सो accrual concept says that record the transaction whenever it is happening, irrespective of the fact that cash is paid or not or cash is received or not. मतलब आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तभी जब वो हुआ है, फिर आपने कैश पे किया या नहीं किया, रिसीव किया या नहीं किया, ये देखने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट accrued, and accrued means it is earned, पेबल, दैट इज व्हाट ऑल द टर्म्स आर गिवन. तो आप देख सकते हैं अक्रूवल कंसेप्ट यहां पे क्या दिया है. उसके बाद सो अक्रूवल क्या है बेटा, सीधे साधे शब्दों में अक्रूवल कंसेप्ट सेज दैट record the transaction whenever it is actually happening, irrespective of the fact that it is paid in cash or not or it is received in cash or not. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीजिए उसी दिन जिस दिन ये हुआ है. आपको इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कैश मिला या नहीं, रिसीव हुआ या नहीं, पे किया या नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. उसी के साथ रियलाइजेशन चलता है बेटा. रियलाइजेशन क्या बोलता है, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड. 23 अगस्त को अगर मैंने सेल किया, भले पेमेंट 23 अक्टूबर को आने वाला है, सेल अगर मैंने 23 अगस्त का किया बेटा तो सेल रिकॉर्ड भी 23 अगस्त का ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 20 अगस्त को मुझे ऑर्डर मिली गुड्स की 5 करोड़ की, 23 अगस्त को मैंने गुड्स बेचे सिर्फ 2 करोड़ के, लेकिन क्रेडिट पे बेचे 2 महीने के. मतलब ऑर्डर मिली 5 करोड़ की 20 अगस्त को, ये बताता हूं फ्लो आपको मैं. 20th August I received order of 5 crore, but I sold goods on 23rd August of 2 crore. Payment will be received on 23rd October. 23 अक्टूबर को पेमेंट मिलेगा ये 2 करोड़ का. अब ट्रांजैक्शन मैंने कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर द वैल्यू फॉर विच रेवेन्यू इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड, एंड दैट इज ओनली 2 करोड़. भले ऑर्डर मुझे 5 करोड़ की या 50 करोड़ की मिली, मैंने गुड्स बेचे क्या उतने के? नहीं. गुड्स कितने के बेचे बेटा? 2 करोड़ के. तो 2 करोड़ ही इनकम बता सकता हूं मैं. दैट टू द इनकम शुड बी शोन ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हेन एक्चुअल गुड्स हैज बीन सोल्ड. एक्चुअल गुड्स कब सेल हुए बेटा? 23 अगस्त को. तो 23 अगस्त का सेल मैंने बताना चाहिए और वैल्यू 2 करोड़ की बतानी चाहिए. 5 करोड़ का ऑर्डर मिला लेकिन मैंने गुड्स तो सिर्फ 2 करोड़ के बेचे. सो रियलाइजेशन सेज इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज अर्नड or realized, that is either it is received or earned. अब received और earned की इंग्लिश में मीनिंग सेम है, अकाउंट्स में मीनिंग सेम नहीं है. इंग्लिश में मीनिंग earned मतलब क्या है? earned हुआ 23 अगस्त को. क्यों? क्योंकि माल बेचा आपने, माल गया आपके यहां से 23 अगस्त को. received कब होगा आपको? 23 अक्टूबर को. क्यों? Because you sold on credit for 2 months, though it is sold on 23rd August, but amount will be received on 23rd of October. So income is realized whenever the transaction is actually happened, the sale is happened, or income is recognized when the goods has been actually delivered from your place to the place of buyer. So that is what given here. Revenues are recorded only when sale are affected or the services are rendered. तो सेल हुआ 23 अगस्त को. 23 अगस्त को मैं सेल बताऊंगा, इनकम बताऊंगा, भले पैसे मुझे 2 महीने बाद मिलने. Sales revenues are considered as recognized when sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact that again cash is received or not. तो realization क्या बोलता है? Realization says that record the revenue when it is realized. It doesn't matter you have received in cash or not. अब रियलाइज कब हुआ? 23 अगस्त को ही सेल रियलाइज हुआ है. रियलाइज हुआ मतलब आपने एक्चुअली बेचा, पैसा तो 2 महीने बाद आएगा. तो रियलाइजेशन सेज दैट ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल ओनली. ये अक्रूवल जैसा ही बोलता है कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड ओनली व्हेन द गुड्स हैज बीन dispatched, delivered from your place to the buyer's place. So that is what realization concept. I hope it is clear. And next concept is, my dear, the last concept there, that is called as periodicity and matching concept. अगला concept है periodicity और matching. मैंने एक आइसक्रीम स्कूप बनाया, मेरा आइसक्रीम पार्लर है, मैंने स्कूप बनाया 15 रुपए में, बेचा 25 रुपए में. So I should compare the profit. Selling price is 25, cost price is 15. So SP is greater than CP and my profit is 10 rupees. Am I right, students? So that is what matching and periodicity. ये देखिए SP minus CP, which is our usual equation, is profit. And vice versa it is loss. That CP minus SP is loss. हम जो कुछ बनाते हैं उसको बनाने में कुछ लगता भी है, कॉस्ट इनकर होती है. Cost is nothing but the sacrifice which is made for making a particular product.
तो उस तरह से मैचिंग और पीरियोडिसिटी हमें देखना है. से आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2021-22. मुझे 2021-22 का अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है. अकाउंटिंग ईयर का टर्मिनोलॉजी बोलता है बेटा 2021-22 मतलब माय ईयर स्टार्टेड ऑन 1st of April 21 एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 31st of March 22. Am I right everybody? मेरा साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2021 में और खत्म होगा 31 मार्च 2022 में. सो दिस इज माय मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट व्हिच सेज दैट the accounting profit and loss should be calculated for the same period for which revenues and expenses are for the same period for which income and gains are considered. For the same period you should consider expenses and losses. मतलब मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा तो याद रखिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आई शुड कंसिडर द सेम पीरियड. इसी 12 महीने का मैंने एक्सपेंसेस और लॉसेस लेना चाहिए और इसी 12 महीने का मैंने इनकम और गेन कंसिडर करना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग माय प्रॉफिट एंड लॉस. सो इफ आई कंसिडर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्रॉम 1st April 21 to 31st March 22, I should consider income for the same period and compare it with each other so that I can arrive at logical profit and loss. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 12 महीने के एक्सपेंसेस लिए और 15 महीने का इनकम लिया या फिर 15 महीने का एक्सपेंसेस लिया और 12 महीने का इनकम लिया. दिस इज द रॉन्ग थिंग. सो पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट सेज दैट द पीरियड विच इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी यूनिफॉर्म एंड वन एंड द सेम. अगर अगस्त 2022 का मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो अगस्त 2022 के ही एक्सपेंसेस लॉसेस और अगस्त 2022 के ही इनकम और गेन कंसिडर होनी चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. अब मैचिंग यही बोलता है क्योंकि ये अगस्त 2022 में मैंने जो कुछ प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्च हुआ, सेल करने के बाद उसी से इनकम आया, तो दैट इनकम विल बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये दोनों को कंपेयर करके मैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं. सो अकाउंटिंग पीरियड एंड मैचिंग कंसेप्ट सेज दैट कंसिडर द सेम पीरियड for which you want to calculate profit and loss. Expenses and losses along with income and gains of the similar period must be considered to arrive at the logical conclusion of profit and loss. मतलब अगर हमें 1 महीने का प्रॉफिट चाहिए अगस्त 2022 का तो उसी महीने का एक्सपेंडिचर एंड लॉस कंपेयर करना चाहिए उसी महीने के इनकम और गेन के साथ. उसके पहले महीने का कोई लेना देना नहीं ना और उसके बाद के महीने का कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली अगस्त 2022. उसी तरह से अगर 1 साल का आपको कैलकुलेट करना है दैट इज फ्रॉम 2021 to 22, so 1st April 2021 to 31st of March 2022, then you must consider the similar period for expenses and losses and similar period for income and gains. So that is what matching and periodicity concept. याद रखिए बेटा, इससे एक बहुत बढ़िया चीज आगे उन्होंने दी है. ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर कंसिडर्ड बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड. ऑल एक्सपेंसेस जो वो पीरियड के है वो कंसिडर होंगे, पे हुए तो भी कंसिडर होंगे, पे नहीं हुए तो भी कंसिडर हुए होंगे. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको क्या बोलना चाहता हूं. अगर मैं अगस्त 2022 का P&L बता रहा हूं तो सैलरी जो मैंने अपने एम्प्लॉय को देनी है अगस्त 2022 में, मैंने उसी महीने की सैलरी कंसिडर करनी चाहिए, पे हुई तो भी या नहीं हुई तो भी, क्योंकि मुझे देना तो पड़ेगा सैलरी. आज पीपल आर वर्किंग फॉर मी, आई नीड टू पे टू देम फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर फॉर 21-22 तो 12 महीने की सैलरी मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी. 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसिडर करना पड़ेगा, भले दिया या नहीं दिया वो दूसरी बात है, लेकिन वो उसी पीरियड का है. सो एक्रूअल सेज दैट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेनेवर इट इज हैपनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज पेड इन कैश और नॉट और रिसीव्ड इन कैश और नॉट. तो उसी की वजह से इन्होंने बोला है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट देयर आर वेरियस एडजस्टमेंट. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बेटा? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अक्रूड अनपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस. आपने एडवांस में दे दिया, अभी तक देने की जरूरत नहीं थी, आपने अगले 6 महीने का रेंट दे दिया ओनर को, जबकि देना एक्सपेक्टेड है 1 महीने का, आपने अगले 6 महीने का दे दिया. सो यू कैन शो इट एज एन एसेट बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. उसके साथ अक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू. अक्रूड रेवेन्यू मतलब आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब जो अभी तक मिला नहीं है, यानी जिसका अक्रू भी होना आपका बाकी है. ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप ये पीरियोडिसिटी और मैचिंग पे बता सकते हैं. आल्सो यू कैन मेक वेरियस प्रोविजंस on the basis of this particular concept only, that is periodicity and matching concept. Thus it matches the revenues earned during the period
with the expenses incurred during the same period to earn the revenues before sharing any profit and loss. So that is what periodicity and matching concept. I hope you have enjoyed all these concepts. So concept number 1, business entity, separate entity or legal entity concept. Concept number 2, money measurement concept. Concept number 3, cost concept or historical cost concept. Concept number 4, that is dual aspect, which we have discussed along with business entity only. Concept number 5 is accrual. After accrual, we have discussed realization concept, and after realization concept, we have discussed periodicity and matching concept. So this is what the journey as far as these concepts are concerned. Concepts are very important. और गोइंग कंसर्न एक हमने देखा था, तो टोटल 8 कंसेप्ट देखे बेटा हमने. लेक्चर ध्यान से सुनिए, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से सुनिए, एंड डू लेट मी नो फॉर ऑल योर डाउट्स. Always welcome for all your queries, and thank you for listening carefully to this fantastic lecture. Do remember, this is very important lecture because this is going to lay down the foundation stone for entire accounting. तो ये lecture बड़ा ध्यान से सुनिए बेटा. कहीं पे अगर कुछ unclear है तो जरूर मुझसे फिर से पूछिए आप. No problem at all. You can put the question on YouTube as well as you can ask me personally as well. Thank you. Have a wonderful day ahead, and bye bye. God bless you.